أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. آمين. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. آج کی سٹوری کا عنوان ہے رکشہ والا ان راجہ بازار. لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ سنایا جائے، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کی بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک فرمائیں فار فیوچر نوٹیفیکیشنز. جو آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سلام علیکم، فرشتے کہیں گے اہل جنت سے تم پہ سلامتی ہو، بما صبر تم، دنیا میں جب تم صبر کیا کرتے تھے. صبر اور شکر یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بحیثیت مسلمان ہم نے صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی کرنا ہے. فنعم عقبی الدار، یہ جو ہمیشہ کے گھر کی نعمت، ہمیشہ کی جنت ملے گی اہل جنت کو. جو دعا پڑھی گئی بڑی پیاری دعا ہے. یہ دعا ہم صبح اور شام ضرور پڑھا کریں 3 دفعہ. اللہ کے پیارے محبوب، اللہ کے پیارے رسول، جو اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں اور نبی بھی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے تمام صحابہ جنتی ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کے آخری صحابی تک ہمارا ایمان ہے ان کی قبریں جنت کے باغات میں سے باغ ہیں. تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا امت کو سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، یہ اتنی نعمتیں جو آپ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں یہ زوال پذیر ہو جائیں. اللہ نے آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی، ہم اللہ تعالیٰ کی خوبصورت کائنات کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کانوں کی نعمت عطا فرمائی، ہم سن سکتے ہیں، ایک دوسرے کی گفتگو کو سن سکتے ہیں. ماشاءاللہ امام کعبہ اور مسجد نبوی شریف کے امام ائمہ حضرات کی تلاوت کو سن سکتے ہیں، اچھی نعت کو سن سکتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی گفتگو کو سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زبان کی نعمت عطا فرمائی جس سے ہم کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، جس زبان سے ہم درود شریف پڑھتے ہیں. کتنا سکون ملتا ہے درود شریف پڑھ کے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے جن سے ہم کلام پاک کو کھولتے ہیں، جن کو ہم دھو کے وضو کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں، عافیت کی زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاؤں عطا فرمائے جن سے چل کے ہم مسجدوں کو جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کی نعمت عطا فرمائی
घर बार की नेमत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने आफ़ियत नसीब फरमाई, इज़्ज़त नसीब फरमाई। अल्लाह ताला बहुत अच्छे हैं। ए अल्लाह आप बहुत अच्छे हैं। काश हम अच्छे होते, हम आपके फर्माबरदार बंदे और बंदियाँ होते। तो अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें हमें अता फरमाई, इन नेमतों पे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। किस्सा कुछ यूँ है कि चंद माह पहले इस आजिज़ को वतन अज़ीज़ जाने का मौका मिला। तो रावलपिंडी में, जहाँ अपने रिश्तेदारों के पास मैं ठहरा हुआ था, तो ज़ोहर के बाद मैं राजा बाज़ार गया, वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीद व फ़रोख्त की। वापसी पे बारिश शुरू हो गई थी, असर की अज़ानें भी होना शुरू हो गई थी और मेरे हाथ में कुछ चंद चीज़ें भी थीं। तो एक रिक्शा वाला को हाथ दिया, बड़ा खूबसूरत रिक्शा था। उसने रिक्शा रोक दिया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहने लगा जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा भाई इतने पैसे दे के फ़लाँ जगह से आया हूँ और वहाँ जाना है, तो आप इतने पैसों में आप मुझे वहाँ ले जाएंगे? कहने लगे जी ज़रूर ले जाएंगे। चल बैठ गया। तो मैंने कहा आपके क्या हाल हैं, आप ठीक हैं? कहने जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खुशबाश हूँ। मैंने कहा मेरी ये दुआ है, अल्लाह ताला आपको इससे अच्छा रोज़गार अता फरमाए। कहने लगे जी नहीं जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो जब उसने कहा ना कि मैं तो बहुत खुश हूँ, तो आई वॉज टेकन अबैक, आई वॉज डीपली सरप्राइज्ड बाय हिज रिस्पॉन्स। मुझे धचका सा लगा। तो मैंने कहा अच्छा? कहले जी मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने कहा भाई आप कितने पैसे कमाते हैं? कहते हैं जी कभी 900 कमाता हूँ, कभी 1600 कमाता हूँ, कभी 1900 भी कमा लेता हूँ, और मैं कमेटी भी डालता हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, और मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ। वो मौलाना साहब हमें बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताते हैं। और उसने दीन की बातें करनी शुरू कर दी, और ये आजिज़ उसकी गुफ्तगू सुनता रहा, हत्ता कि उन्होंने मुझे मेरी मंजिल मकसूद पे उतार दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो रिक्शा वाला तो चला गया, मगर मेरे लौहे क़ल्ब के ऊपर वो अपनी एक सब्र और शुक्र की सादा गुफ्तगू के अनमिश नकुश छोड़ गया, अनमिट नकुश छोड़ गया। मुझे अपने उस मुसलमान भाई की वो सादा गुफ्तगू आज भी याद आती है। और फिर वो सवाल उभरा मेरे सामने, जिसका जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज खुशियाँ हमसे क्यों रूठ गई। आज इस मुल्क अमेरिका में मुसलमान रहते हैं, मालो दौलत भी है, घर बार भी है, खूबसूरत गाड़ियां हैं, मगर फिर भी घरों में सुकून नहीं। घरों में कीमती फर्नीचर हैं, मगर सुकून नहीं। मियाँ और बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं, औलाद वालिदैन की फर्मा बरदार नहीं। खुशियां हमसे रूठ चुकी हैं। तो हकीकत यह है कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनका शुमार नहीं किया जा सकता। हर तरफ जिस तरफ नज़र उठा के देखें, एक खूबसूरत कायनात नज़र आती है जिसको मेरे अल्लाह ने तख्लीक फरमाया। गम और खुशी ये ज़िंदगी की धूप और छाँव है, और सुभान अल्लाह, वजूदे गम
भी इस ज़िंदगी का हिस्सा है एहसास मुसर्रत के लिए। वजूद गम भी इस ज़िंदगी का हिस्सा है एहसास मुसर्रत के लिए। जो सही मानों में अल्लाह वाले होते हैं, जिन्होंने पाकीज़ा जवानियाँ गुजारी होती हैं, अपने रब के साथ ताल्लुक़ बनाया होता है, तो गम में भी उनको एक राहत मिल रही होती है। वो दरअसल इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करते हैं। इस मईयत की लज्जत को वो पाते हैं जब उनकी ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं। सुभान अल्लाह। और उसके बरक्स वो लोग जो कलमा तो पढ़ते हैं तो मुसलमान, मगर सुभान अल्लाह, ना नमाज, ना ज़कात, ना रोज़ा, ना हज। तो उनकी ज़िंदगियों में सुभान अल्लाह, ऐसे लोगों की ज़िंदगी नज़रें हमेशा तल्खियों पे रहती है। उनकी सोच एक नेगेटिव सोच बन जाती है। वो हमेशा ज़िंदगी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं और इसलिए उनकी ज़िंदगियों में फिर सुकून नहीं होता। बड़े प्यारे अशार हैं। दिल का हर गम तबस्सुम में छुपा रखा है, दिल का हर गम तबस्सुम में छिपा रखा है, हमने हर गम को गमे यार बना रखा है, हमने हर गम को गमे यार बना रखा है। नो के हर खार से पूछो वो गवाही देंगे, हमने कांटों में भी गुलजार खिला रखा है। खुद मेरे दिल ने तराशे हैं गमों के ये पैकर, मेरे अल्लाह ने मुझे हर गम से बचा रखा है। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।